So hello everyone, once again welcome back to my channel. In this video we are going to discuss the predictions for 27th September IELTS exam, which is for both academic and general training. But before I start, let me clear this thing that my predictions are totally based on my 10 to 12 years of teaching experience and also on the previous exams. So talking about the overall level of IELTS exam, it will be little bit between moderate to difficult. Talking about the listening module, the listening will be quite easy except for section 4, which some students find a little bit hard to stay on track with the audio, but it's not that tough if you follow my videos and follow my channel. So in listening section 1, you will get 1 to 10 all sentence completions, and main thing is beware of the traps, which are many, you may occur many traps in IELTS listening section 1. Talking about listening section 2, you will get a map, you might get a map and some short multiple choice questions. Again, this will be very easy to find out. In section 3, you will get some long multiple choice questions and along with that some matching the information. And the trick here is that for finding the matching information, you have to focus purely on the synonyms, and for long multiple choice questions, game changer is how you mark down the keywords instead of marking down the complete and detailed option. For listening section 4, there will be a single lecture on academic topic, and 31 to 40 will all be single word sentence completion types of questions. The tip here is that stay on track, mark down the subheadings, words before and after the blanks are always the synonyms. The best preparation material is Cambridge books number 15 to books number 20 and also amanieltsonline.com, from where exams often repeat. IELTS listening, IELTS reading, often you can get the repeated tests are many times repeated from this website amanieltsonline.com. It is highly recommended if you also are planning to give your IELTS exam even coming or in the next month. So moving on to academic reading का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है. सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशंस बहुत ज़्यादा आपको आती थी. फॉर एग्जांपल मतलब सेंटेंस कंप्लीशंस एंड ट्रू फॉल्स को मिलाकर ही आपके 6 बैंड इजीली बन जाते थे, बट द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड नाउ. ब्लैंक्स अभी सिर्फ 3 देखने को मिल रही हैं पिछले कुछ दिनों से जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बेसिकली इन इंडिया. सो आपको अभी सिर्फ ब्लैंक्स पर रिलाई नहीं रहना है. यू हैव टू रिलाई मोर ऑन ट्रू फॉल्स, येस नो, multiple choice questions, writer's opinion and matching the information. These are very important types of questions. In academic reading section 1, you might get list of headings, multiple choice questions, writer's opinion and true false and not given are for 110% sure. In section 2, you will definitely get some matching the information, writer's opinion, सेंटेंस कंप्लीशंस एंड डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसके ऊपर मेरी रिसेंटली वीडियोस आ चुकी हैं कि आपने ट्रिक्स के साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स कैसे करनी है एंड डबल वाले मल्टीपल चॉइस कैसे करने हैं, मैचिंग इंफॉर्मेशन कैसे करनी है, ट्रिक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव करके जल्दी आपने कैसे करना है. अगर मैं रीडिंग सेक्शन 3 की बात करूँ तो आपको वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेंटेंस एंडिंग, ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स एंड येस टू नॉट गिवन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. एंड द रिलायबल मटीरियल, ऑथेंटिक मटीरियल इज़ ऑब्वियसली amanieltsonline.com, जहाँ पर जाके वहाँ पर एक्चुअली में जो रिसेंट एग्ज़ाम्स हुए हैं वहीं में से पैसेजेस रिपीट हुए थे. लास्ट 2-3 टाइम्स ऐसा ही हो रहा है कि वहीं से मटेरियल जो है एग्ज़ाम के पैसेजेस हैं वहीं से रिपीट हो रहे हैं एंड एग्जैक्टली वैसा ही पेपर जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, पैटर्न है, वहीं से रिपीट होता जा रहा है. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यूज़ दिए हैं. सो amanieltsonline.com पर जाके स्टार्ट प्रैक्टिस पर टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करके यू कैन परचेज द मेंबरशिप एट जस्ट ₹1000, विच इज़ द लोवेस्ट प्राइस. इतने कम प्राइस में आपको कहीं पर भी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल मटेरियल नहीं मिलने वाला है. आई अश्योर यू दैट. और इवन यू हैव सेकेंड ऑप्शन, यू कैन परचेज माई क्रैश कोर्स विच इज़ जस्ट एज ₹499 फॉर ऑल द 4 modules with the video lectures, all the tips and tricks, PDF material, recent material and each and everything, vocabulary, writing samples, speaking samples only at ₹499. Again the cheapest one, and literally it has helped many students to score their more than desired bands. So this is the best preparation source. But if you haven't done Cambridge yet, books number 16 to 20 are highly again recommended. So talking about general training IELTS reading, it is very easy. It is not that tough. Section 1, you will get again matching information, true,
फॉल्स विच आर वेरी इजी टू कंप्लीट। एंड अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आई एम अपलोडिंग दी वीडियोज़ ऑफ माई क्लास रिकॉर्डिंग्स सिर्फ मेंबर्स के लिए। अगर आपने मेंबरशिप परचेज करी हुई है तो इसमें मैं क्लास की रिकॉर्डिंग्स के लेक्चर्स में अपलोड करती हूँ, जहाँ पर अगर आपके भी डाउट सिमिलर हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। इन शॉर्ट आपको क्लासेस मिल जाती हैं सिर्फ 179 मेंबरशिप लेके। In section 2 you will get sentence completions 15 to 27, very easy to solve and very important, you can't miss this. In section 3 you may get different types of questions including sentence completions, writer's opinion, matching the information, multiple choice questions or list of headings, any 3 out of these given types of questions. All in all, if you want to crack IELTS with 7 band general training, most important questions for you are matching information, true, false, blanks, multiple choice, writer's opinion and the sentence completion types of questions. So moving on to academic writing task 1, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 6 सितंबर को, उसमें आपको पाई चार्ट आया था जो सिमिलर था हमारे अमन IELTSonline.com वाली वेबसाइट में। बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं आया था बट 99% वैसा ही आया था, जस्ट वो कैटेगरीज चेंज थी, अदरवाइज वो सारा कुछ डेटा सेम था। टॉकिंग अबाउट दी प्रेडिक्शंस फॉर 27, तो आपको अगेन पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड टेबल चार्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट एज दिस इज़ दी लास्ट एग्जाम ऑफ द मंथ तो चांसेस ये भी हैं कि प्रोसेस चार्ट भी आपको आ सकता है। तो अमन IELTSonline.com पर जाके आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर इवन अगर आपने कॉपी में भी नोट किया हुआ है कोई भी सैम्पल तो यू कैन जस्ट अपलोड इट एंड यू कैन गेट इंस्टेंट बैंड स्कोर, इंस्टेंट फीडबैक, जो ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो भी आपको साथ ही साथ में शो हो जाएंगी एंड यू कैन अटेम्प्ट एज मैनी टेस्ट इन अ डे एज यू वांट। जो मर्जी मॉड्यूल कर लो, जितने मर्जी टेस्ट कर लो एक दिन में, अनलिमिटेड टेस्ट हैं, जितना मर्जी चाहिए आप एक दिन में करो अगर आप उसको मेंबरशिप को परचेज करते हो फॉर अ मंथ देन। सो मूविंग ऑन टू राइटिंग टास्क 2, राइटिंग टास्क 2 के जो टॉपिक्स रिसेंटली चल रहे हैं वो आपके बेसिकली बेस्ड हैं ऑन सोशल इश्यूज़ बेसिकली, और गवर्नमेंट के रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आपको आ रहे हैं फॉर अकेडमिक IELTS राइटिंग टास्क 2। तो ये टॉपिक्स को एग्री डिसएग्री वाले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कशन टाइप ऑफ एसेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जो आपको हम मटेरियल दे रहे हैं PDF में, क्रैश कोर्स में, हमेशा एग्जाम उसी में से रिपीट होता रहता है। तो अगर आप क्रैश कोर्स परचेज करते हो उसमें सैम्पल आंसर्स काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं सॉल्व किए हुए, उसको रीड करो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर IELTS राइटिंग टास्क एग्जाम। उसके बाद अगर मैं जनरल ट्रेनिंग की बात करूँ तो फॉर्मल लेटर्स आर इन ट्रेंड दीज डेज, लेकिन आपने सेमी एंड इनफॉर्मल भी छोड़ के नहीं जानी। अगेन अगर आपने मेंबरशिप ली हुई है तो आपको बेनिफिट ये हो जाता है एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। आई कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोस फॉर द मेंबर्स ऑफ माय चैनल, जो स्पेशल रिकॉर्डिंग्स होती हैं ऑफ माय क्लास। इसके बाद राइटिंग टास्क 2 फॉर जनरल ट्रेनिंग, अगेन आपको एम्प्लॉयमेंट वाला, वर्क फोर्स वाला ये टॉपिक्स ज़्यादा चल रहे हैं तो इसको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है। गवर्नमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट वाला, ऑल्सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो मूविंग ऑन टू स्पीकिंग, स्पीकिंग में रिसेंटली कनाडा में टॉपिक्स जो आए थे, इट वॉज अबाउट द आउटडोर एक्टिविटी एंड स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट इन योर कंट्री। ये दोनों क्यू कार्ड्स आए थे कनाडा में, मेरे दोनों स्टूडेंट्स को आए थे। सो दिस इज अबाउट द प्रोडिक्शन एंड द बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपरेशन। यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर द क्रैश कोर्स और यू कैन परचेज द मेंबरशिप ऑफ अमन IELTSonline.com, जहाँ पे रिसेंट एंड प्रीवियस के एग्जाम्स के मटेरियल के टेस्ट पड़े हुए हैं। जो लास्ट भी एग्जाम्स आए थे इसमें से ही रिपीट हुए हैं, तो ये अगर आप कर लेते हो तो आपको टेंशन एग्जाम की नहीं रहेगी। And if you find this video informative and beneficial, do give it a thumbs up, share it with your friends and do not forget to subscribe my channel for more daily and informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very very best for your IELTS exam.